Hello everyone. I hope everyone happy and healthy at your home. है ना? Okay. So students, as you all know that we already started chapter number 5th one for revision in your revision sheet. So first of all, everyone take out of your revision sheet. And we also discussed about the important notes of the division chapter. You can see here. All right. Okay. So what is division? What is dividend? Divisor, quotient? All right. We already discussed about that all the topic. Okay. And also relation between multiplication and division factor we also discussed. Okay. And properties of division we already discussed through previous lecture. All right, so today and we also calculate the few sums. All right, okay, so today we are going to start page number 21 in your revision sheet. Question number 4th one, divide. First, second and third we already calculated in previous lecture. So question number 4th one, divide. Let's start with first one. See here given 36 divided by 3. Okay, so I hope you all know how to divide because we already learn in deep. Alright, जब भी हम चैप्टर्स जब पहले चैप्टर्स डिटेल में हम पढ़ते थे तभी हम सब ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था हाउ टू डिवाइड. ऑलराइट, ओके, सो ये गिवन 36 डिवाइड बाय 3. सो इन 3 टेबल देखो पहले 1 by 1 डिजिट हम लेंगे. सो इन 3 टेबल वेयर कम्स 3, तो 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 minus 3 0. नाउ क्या करेंगे, 6 ब्रिंग डाउन, सो नंबर इज 6. इन 3 टेबल वेयर कम्स 6, सो 3 2 ज़ा 6, 6 minus 6 0. तो आंसर हमें मिला है वो है 12. और इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट. ऑल्सो कोएफिशिएंट एंड आंसर बोथ द सेम. ऑलराइट, सो कोएफिशिएंट मिला है हमें यहाँ पर, दैट इज़ 12. और रिमाइंडर है दैट इज़ 0. यहाँ पर जो बचता है जो भी है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज 0. सो सेकेंड वन सम. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू योर सेल्फ एवरीवन. It's too easy, similar like this one. Okay, so 84 divide by 4. So in 4th table where comes 8, so 4 2 za 8, 8 minus 8 0, 4 bring down. In 4 table where comes 4, then 4 1 za 4, 4 minus 4 0. So and quotient is 21 and remainder will be 0. All right, okay, so next one, page number 22, question number third one. In your homework you should try. 4th one, let's do 4th one. All right, okay, so here given 3006 डिवाइड बाय 6. दैट मीन्स 3006 है, उसको हमें डिवाइड करना है 6. 3006 पहले हम लिखेंगे डिवाइड फॉर्म में लाइक दिस. ऑलराइट, ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है, 1 by 1 नंबर हम देखते हैं बट 3 है वो डिवाइज़र से स्मॉलर नंबर है. दैट मीन्स 3 इज़ द स्मॉलर देन डिवाइज़र. Then what we have to do, we take 2 digit together, that means 30. So in 6th table where comes 30, then 6 5 za 30 minus 0 0, 0 bring down, 6 0 za 0, 6 bring down again. In 6th table where comes 6, 6 1 za 6 0. So here quotient will be 501, remainder is 0. All right, okay, similarly 5th one and 6th one.
you should try to yourself in your homework. All right, third one, fifth one, sixth one. Okay, next one, page number 23 in your revision sheet, page number 23. Question number fifth one, divide and find quotient and remainder. डिवाइड एंड फाइंड, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमने डिवाइड ही किया है, बट नीचे लिखा नहीं था कि क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। और वैसे मैंने हर एक क्वेश्चन में बताया है ये सब में कि दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन एंड दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। अगर पूछा है कि फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर तो हम नीचे दिखाएंगे कि क्वेश्चन इज़ दिस, रिमाइंडर इज़ दिस। ओके, सो लेट्स डू दिस वन। 505 डिवाइड बाई 2, पहले तो हम इसको लिखेंगे इन डिवीज़न फॉर्म। 505 डिवाइड बाई 2। सो इन फिफ्थ टेबल वेयर कम्स 2, तो नहीं आता। फिफ्थ के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में, इट्स माई मिस्टेक, 2 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, तो नहीं आता है। तो क्या करेंगे, उसका नियर बाय स्मॉलर नंबर इन सेकेंड टेबल, 2 टेबल। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बट 6 इज़ दी बिगर देन 5, इट्स नॉट पॉसिबल, सो वी यूज़ 2 2 ज़ा 4, 5 minus 4 1, 0 bring down, number become 10. So in second table where comes 10, so 2 5 ज़ा 10, 0 0, 0 bring down again, 2 zeros are 0 and 5 bring down. Similar in 2 table where comes 5, तो नहीं आता है, it's not come in second table. So what we have to do in second table, we use nearby smaller number, that is 2 2 are 4, 5 minus 4 1. सो हियर हमें मिला है जो क्वेश्चन मिला है, दैट इज़ 2502 एंड रिमाइंडर दैट इज़ 1। सो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन जो हमें मिला है वो लिखेंगे इज इक्वल टू 2502। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2502, ये दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, हाँ ओके। एंड रिमाइंडर मिला है दैट इज़ 1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। देखो ये पूरा स्पेलिंग लिखना है हमें, क्वोशिएंट पूरा स्पेलिंग, रिमाइंडर पूरा स्पेलिंग एंड करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे हम। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सेकेंड वन जो यहाँ पर है, ओके वो भी हम करते हैं। चलो सिमिलर प्रोसेस जो हमने यहाँ पर किया है वही। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिखेंगे इन डिवीज़न फॉर्म 7345 डिवाइड बाई 3, 7345 डिवाइड बाई 3। ओके, सो लेट्स डू डिवाइड। ओके, सो 1 डिजिट चेक करेंगे। सो 7 इन 3 टेबल वेयर कम 7 नॉट कम, देन व्हाट वी हैव टू डू, इन 3 टेबल नियर बाय स्मॉलर नंबर 7 से, दैट इज 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, बट 9 इज द बिगर देन 7, सो वी कांट यूज हियर, सो वी यूज 3 2 ज़ा 6, 7 minus 6 1, 3 bring down, number become 13. In 3 table where comes 13, 3 4s are 12 and 3 5s are 15, but 15 is bigger than 13, so we use 3 4s are 12, 0 1, again 4 bring down, number becomes 14. So in 3 table where comes 14, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, नियर बाय स्मॉलर नंबर इन 3 टेबल, 3 5 ज़ा 15 हो गया, बट 15 इज बिगर देन 14, सो वी कांट यूज हियर, सो वी यूज 3 4 ज़ा 12, 4 minus 2 2,
again 5 bring down, so number become 25. so in 3 table where comes 25. आता है तो चेक करेंगे, नहीं आता है तो क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया 3 टेबल में 25 से छोटा और नज़दीक वाला नंबर कौन सा है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो 3 8s are 24, 0 1. सो यहाँ पर आंसर मिला है वो है 2448. रिमाइंडर इज़ 1. राइट, ओके. तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वोशंट एंड रिमाइंडर. तो क्वोशंट हमें मिला है वो है, क्वोशंट इज़ 2448 एंड रिमाइंडर मिला है वो है 1. दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोशंट आंसर. राइट, ओके. ऑल राइट. सो अगेन आई विल टेल यू टुडेज होमवर्क. व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू? So question number 3rd one, page number 22, 5th one and 6th one. All right, this is your homework. Do properly with good handwriting.